Second example, from the following given balance sheet, it bears a statement of changes in working capital and statement of changes in working capital require the current assets and current liability. ये स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कंसीडर करना होगा. तो सबसे पहले हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ changes in working capital. And for this purpose, the required current assets and current liability current assets and current liability table. First column is particular. Second column, the first column particular. Second column 1979 previous year, 1980 current year, and there is two column, increases column and decreases column. Increases column and decreases column. So as per list, first item stock. Stock is a current assets. Sundry debtors is a current assets. Land and building fixed assets. Machinery fixed assets. And in liability side, creditors. Creditors means supplier. Period is less than 1 year. Means current bills payable less than 1 year current. Then share capital, PL account and debenture. These are fixed liability. So first consider the current assets first item stock. First item is stock. Previous year 95,000. Current year becomes a 1,10,000. Means previous year 95,000. Current year becomes a 1,10,000. Means increases. So increases column. Rupees 15. And second item is sundry debtors. Sundry debtors. Previous year 40,000. Current year 70,000, and there is 40 to 70 means again increases. So increases column 30,000. These are two current assets. So finally total 1,35,000 and 1,80,000. 1,80,000. Then current liability. Current liability. First item, creditors. Creditors. Previous year is 60,000. Current year becomes 72,000. 60,000 becomes a 72,000 increases, and as per our rule, liability increases, capital decreases. So decreases column show rupees 12,000. Decreases column la कितना खर्च 12,000. Second है bills payable. Previous year is 32,000. Current year is 20,000. मतलब 32,000 झाले 20,000 म्हणजे कमी झाले, कम हो गए, डिक्रीज हो गए.
अब डिक्रीजेस बट कैपिटल इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस कॉलम 12,000, यहाँ अपोजिट लिखा जाता है, मैंने लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज में लिखो, डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज में लिखो। फाइनली टोटल 92,000 एंड 92,000। और अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल, जो हमारा नाम क्या स्टेटमेंट का, वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो प्रीवियस ईयर करंट एसेट्स 1,25,000, लायबिलिटी 92,000, so assets minus liability, so working capital will be 43,000, और second year 1,80,000 current assets, 92,000 current liability, assets minus liability is equal to capital 88,000, बराबर है। मैंने पिछले साल का वर्किंग कैपिटल 42,000, अभी का हो गया 88,000, तो वर्किंग कैपिटल 43,000 becomes 88,000, means working capital increases. So mention if it is our answer, increases in working capital increases in working capital. How much working capital increase? 43,000 becomes 88,000, increases by 45,000, but it is mentioned in decreases column. ये फर्स्ट फ्लो कैलकुलेशन अकाउंटिंग का रूल है कि वर्किंग कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मैंने वो फंड आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस कॉलम में, और फाइनली क्या होगा, ये दोनों कॉलम के हम टोटल करके देखते, अगर ये टोटल करेक्ट है तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है। 57,000 ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन पूछे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बैलेंसेस प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी दो पूछे हैं, एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और दूसरा पूछा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो चेक द लिस्ट एज पर लिस्ट। फर्स्ट आइटम स्टॉक, स्टॉक इज ए करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स इज ए करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल इज ए करंट एसेट्स, लैंड इज ए फिक्स एसेट्स एंड मशीनरी इज ए फिक्स एसेट्स। एंड एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल पीरियड मोर देन 1 ईयर माने फिक्स, 9% डिबेंचर, लोन का पीरियड कम से कम 5 साल होता है माने मोर देन 1 ईयर माने फिक्स, पीएल अकाउंट फॉर एवर बनते रहता है जब तक ये कंपनी चलती है माने फिक्स। उसके बाद में है क्रेडिटर्स, सप्लायर जो हमको माल उधार बेचते हैं, उनका समय रहेगा 1 साल से कम माने करंट। और आखिरी में है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पीरियड बहुत कम होता है, 1 महीना, 2 महीने, 1 दिन, 15 दिन, 20 दिन माने लेस देन 1 ईयर। इट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। तो अब दो स्टेटमेंट हमको बनाने के हैं। तो पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। Statement of changes in working capital. So first column is particular, second column 1982 previous year, 1983 current year, increases and decreases. ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल।
सबसे पहले करंट एसेट्स में सबसे फर्स्ट कैटेगरी स्टॉक 55,000 previous year and current year 80,000. So 55,000 becomes 80,000, increases, assets increases. So increases column 25,000. अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखो, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स 1,10,000, 1,20,000. So 1,10,000 becomes 1,20,000, increases, assets increases. So increases column 10,000. Increases column 10,000. Next, bills receivable. Bills receivable 10,000 becomes 30,000. 10,000 becomes 30,000. Increases, assets increases. Increases column 20,000. So current assets are complete. So total 1,75,000 and 2,30,000. 2,30,000. अब लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पिछले ईयर्स में क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर 60,000, and current year is 74,000. Increases, liability increases, but mentioned in decreases column 40,000. लिखते समय कहाँ लिखना है? डिक्रीजेस में लिखना है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 29,000 becomes 54,000. So 29,000 becomes 54,000, increases, but mentioned in decreases column 25,000. 25,000. Total 89,000 and 1,28,000. बिल्कुल इजी है, समझता नहीं से कहना। आता काय करू आपण वर्किंग कॅपिटल काढू। वर्किंग कॅपिटल आणि काय फॉर्म्युला? करंट ऍसेट्स मायनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कॅपिटल। म्हणजे 1,75,000 बद्दल 89,000 वजा करा 86,000 आणि ते 2,30,000 मधलं 1,28,000 वजा करा 1,02,000. माझा पहा 86,000 becomes 1,02,000 माने वर्किंग कैपिटल 86,000 था, अब बन गया 1,02,000 रुपये, माने इंक्रीज हो गया। इसमें फिर increases in working capital, increases in working capital. So 86,000 becomes 1,02,000, increases, but mentioned in decreases column 60,000. और अब टोटल करके देखो दोनों साइड की इंक्रीजेस कॉलम डिक्रीजेस कॉलम टोटल 55,000 और यहाँ पर टोटल आता है 55
ये हमारा एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया, वो माने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट fund flow statement and for this purpose consider fixed assets and fixed liability। यहां पे क्या आएगा, फिक्स एसेट्स और फिक्स लायबिलिटी। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे है, कॉलम्स कसे बनती रहता है। इथे नाव जो आपण सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, अमाउंट, माने हमारे पास पैसे कहां से आए और हमने पैसे कहां पर खर्च किए, है ना। तो पैसे कुठून आले इकडे, पैसा कुठे खर्च केला इकडे। मग आता याचा काही नियम आहे, जसा वर्किंग कॅपिटलचा नियम होता की ऍसेट्स इंक्रीजेस कॉलम, डिक्रीजेस कॉलम, बट लायबिलिटी डिक्रीजेस कॉलम अँड लायबिलिटी डिक्रीजेस इन इन्क्रीजेड कॉलम। आता इथे नियम कसा आहे बघा की इफ fixed liability increases, fixed liability increases and fixed assets decreases, show on debit side of fund flow statement। नियम काय की फिक्स लायबिलिटी इंक्रीज होत असेल आणि फिक्स असेट डिक्रीज होत असेल तर ते ट्रान्झॅक्शन डेबिटला जाईल, आणि सेकंड फिक्स लायबिलिटी डिक्रीजेस and fixed assets increases, show credit side of fund flow statement। पुनः रिपीट करता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर फिक्स लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो डेबिट, फिक्स लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट और फिक्स एसेट डिक्रीज हो रहा तो डेबिट। ठीक है ना। इफ फिक्स लायबिलिटी इंक्रीजेस डेबिट साइड, इफ फिक्स लायबिलिटी डिक्रीजेस क्रेडिट साइड, फिक्स एसेट इंक्रीजेस क्रेडिट साइड, फिक्स एसेट डिक्रीजेस डेबिट साइड। दिस इज द रूल ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे एग्जाम्पल में देखो चेक करते हैं, तो सबसे पहले लायबिलिटी कंसीडर होगा शेयर कैपिटल। पहला टर्म क्या है, शेयर कैपिटल 80,000 होता, आता 95,000 झाला, इंक्रीजेस, लायबिलिटी इंक्रीजेस, and if liability increases, debited to fund flow statement। So debit side, issue of share capital। लिहिताना काल्याचा शब्द, शेअर कॅपिटल का वाढलं
क्यों शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया? क्योंकि कंपनी ने शेयर मार्केट में बेचे होंगे, इसलिए वहां पे क्या लिखा है? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड हाउ मच इंक्रीज? 80,000, 95,000 दिस इंक्रीजेज बाय 15,000. इंक्रीजेज बाय 15,000. उसके बाद में है डिबेंचर. 1 लाख बिकम से 80,000. 1 लाख के डिबेंचर थे. डिबेंचर का मतलब होता है लोन. 1 लाख रुपए लोन था, अब वो 80,000 रुपए हो गया. मैंने लोन कम हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई. अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में. सो क्रेडिट साइड रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर. मैंने हमने क्या किया है? जो लोन लिया था उसमें से कुछ वापस कर दिया. रीपेमेंटचा अर्थ काय होतो? पैसे वापस करणे. मग आता 1 लाखाचे 80,000 झाले म्हणजे किती कमी झाले? हाऊ मच अमाउंट डिक्रीजेस? 20,000. So 20,000 repaid to debenture holders. Third is PL account. 30,000 becomes a 42,000 increases. Liability increases. If liability increases, debited to fund flow statement. So debit side, profit from operation. इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यालाच काय म्हणतात? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन. मग बघा किती आहे? 30,000 होते, आता 42,000 झाले म्हणजे किती वाढले? 12,000. म्हणजे बा शेअर कॅपिटल इन्क्रीज झालं होतं. आपण लिहिले इश्यू ऑफ शेअर कॅपिटल. डिबेंचर डिक्रीज झाले होते, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर लिहिलं. त्यानंतर प्रॉफिट इन्क्रीज झाला म्हणून लिहिलं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन. आता ऍसेट साइड बघा. लँड 70,000 बिकम्स 75,000 increases. Assets increases. If assets increases, credit taken from the statement. So credit side, land purchase. Rupees 5,000. किती वाढले? 5,000. त्यानंतर मशीनरी 54,000 becomes 40,000 decreases. मशीनरी कमी झाली. ॲसेट्स डिक्रीज